Okay, so let me explain the concept of garbage collector in C sharp. See, suppose I write here employee E is equal to new EMP. Okay, and later on, for some reason, my reference has got deleted, or maybe I set it to null. So in this case, what is going to happen? If you see from the memory allocation perspective, here we have this employee reference E, which is holding the address say 100. At 100 location, we have this employee object. So now, when I say E is equal to null, so now E is holding null. So this part is now set to null. So here we are going to have null. That means this object is now become an object to which nobody is pointing. So such an orphan object is known as an orphan object. Understood? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं ऑर्फन ऑब्जेक्ट गॉट इट सो what C sharp does or what happens in C sharp or basically it is not the role of C sharp. I hope you remember we discussed something about CLR common language runtime. It is the environment inside which the .NET application is running. Like in Java we have JVM. जावा में जैसा आपका जावा वर्चुअल मशीन होता है वैसे .NET पे CLR होता है. So this .NET application is running within an environment that is called as the CLR. So CLR is actually responsible for all the memory management. तो ये जो मेमोरी ब्लॉक है हमारा जो हमने रिजर्व किया था बट अब उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है. सच एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज एन ऑर्फन ऑब्जेक्ट. So what we have to do, what C sharp or what this CLR does is right now it will not do anything to this object. Okay, so it says okay you continue creating the objects and let them be orphans. चलने दो ऐसा. तो ऐसे इवेंचुअली क्या होगा बहुत बार ऐसा होता जाएगा कि there are many objects which are getting created and there will be lot of orphan objects. ऐसे बनते चला जाएगा. So the process will continue. Eventually there will be a time when I try to go ahead and create an object. Student S is equal to new student. So when I write new student, that means my intention is to create a new object. To create this new object, I need the memory on the heap. But let's say this memory block is almost completely occupied. पूरा memory block भर चुका है. Then this operation will not be successful. Are you understanding? सबसे पहले हमारा प्रोग्राम शुरू होगा ऐसे बहुत सारे ऑर्फन ऑब्जेक्ट्स बनते चले जाएंगे. कभी कभी प्रोग्राम सालों साल चलते हैं ना. इफ यू सी गूगल application it is running from years together, they don't stop the application, so it is running continuously. तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हीप पर बनते जा रहे हैं रिलीज होते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं रिलीज होते जा रहे हैं. So eventually there will be a time when this memory block will be almost full. So when you try to create an object, this process will not be successful because there is not enough memory. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? Everybody is able to understand what I am telling? So this is the situation when see ये न्यू मेमोरी ब्लॉक का रिक्वेस्ट किसको आया? CLR को आया. तो CLR देखता है अरे अब तो अब मेमोरी नहीं है. Then it will call garbage collector. So what garbage collector will do? It will visit this entire memory block to identify the orphan objects and it will release such orphan objects. वो जहां जहां ऑर्फन्स है उन सबको रिलीज करेगा. रिलीज करना मतलब वो पूरा मेमोरी ब्लॉक को फ्री कर दो. सो रिलीज दिस मेमोरी ब्लॉक. सो लाइक दिस मेनी मेमोरी ब्लॉक्स विल बी रिलीज. ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स रिलीज होते जाएंगे. ठीक है. सो देयर विल बी सम एम्प्टी पॉकेट्स क्रिएटेड. But the problem is this empty pocket is not, you know, consecutive. मतलब कुछ empty pocket यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा. So then it does the reallocation. मतलब वो बोलता है नहीं सारे used object को एक line में रखते जाओ. So let me just clear it up. Let me clear up the entire thing. वो सारे object को क्या करता है? Shifting करता है. So shifting, shifting, shifting. ये सब used memory block है. उन सबको एक जगह पे ले आओ. समथिंग लाइक हार्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन आपने सुना है ना.
something similar to that is going to happen, and we will get a chunk of memory which is free. एक बड़ा सा empty memory block बन जाएगा. So now again initiate this process and allocate the memory for the student object. This is how the garbage collector works. यहाँ तक समझ में आया है तो U for understood टाइप करो. So I hope, what about Abhijit, Shreyas, Shweta, Shrishti, रोहित, ज्ञानेश्वर, संजू, समझ में आ गया? ठीक है. तो अब लेकिन क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इसमें मतलब हमने पूरे ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर दिया, करेक्ट है? सारे रेफरेंसेस मॉडिफाई हो जाएंगे. सो कैन आई से दिस विल बी अ काइंड ऑफ हेवी ऑपरेशन, बिकॉज दिस विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन. तो बहुत समय लगने वाला है. So in order to save time, .NET applies one more concept or one more principle we can say. अभी जैसे हमने पहली बार गार्बेज कलेक्टर रन किया, ठीक है, तो जब पहली बार गार्बेज कलेक्टर हमने रन किया तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स बच गए, मतलब वो गार्बेज कलेक्टर नहीं हुए. सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट गार्बेज कलेक्टर. तो इसको वो मार्किंग कर देता है ऐसे. सॉरी, 111. So these objects are present here which have been marked as 1. That means they have survived the garbage collection. पहली बार जब गार्बेज कलेक्शन कॉल हुआ तो कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट नहीं हुए, डिलीट नहीं हुए, उनको मार्किंग कर दिया गया है एज 1. दे आर कॉल्ड एज जनरेशन 1. अंडरस्टूड? फिर से एप्लीकेशन रन होगा, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट रिलीज होते जाएंगे, मीन्स दे विल बिकम ऑर्फन. देन सेकेंड टाइम गार्बेज कलेक्टर विल बी कॉल्ड. समय एक आएगा ना जब फिर से गार्बेज कलेक्टर की बारी आएगी. सो अगेन गार्बेज कलेक्टर विल बी कॉल्ड. अगेन सम ऑब्जेक्ट्स विल बी डिलीटेड, सम विल परसिस्ट. तो हो सकता है इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो बच जाएं, वो कलेक्ट नहीं हुए हैं. देन दे आर प्रोमोटेड टू, क्या बोलते हैं हम उसको, जो बच गए उसको हम कौन से जनरेशन को मूव कर दे रहे हैं? जनरेशन 2. कुछ ऑब्जेक्ट्स बच गए, कुछ गार्बेज कलेक्ट हो गए. फिर और एक बार कॉल हुआ तो कुछ ऑब्जेक्ट फिर भी बच जाएंगे, तो वो जनरेशन 3 हो जाएगा. सो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, अभी तक 3 है. तो 3 जनरेशन तक मार्किंग हो जाती है. ये समझ में आ रहा है क्या? जिस वक्त गार्बेज कलेक्टर कॉल हुआ, जो ऑब्जेक्ट्स गार्बेज कलेक्टर नहीं टच करता है, मतलब उनको कलेक्ट नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, उनको वो मार्किंग करता जाता है. तो फर्स्ट टाइम में जनरेशन 1, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट होंगे, कुछ रहेंगे ना. तो जो जनरेशन 1 से भी बच गए, जनरेशन 2 में भी बच गए, उनको हम लोग प्रमोट कर देते हैं किसमें? जनरेशन 2 में. फिर से और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाएंगे, कुछ बच जाएंगे. तो जनरेशन 1 से जनरेशन 2, जनरेशन 3. सो 3 इज लाइक द ओल्डेस्ट जनरेशन ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड एवरीवन? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड गार्बेज, मतलब ये ऐसे यूजफुल ऑब्जेक्ट्स होंगे ना जो प्रोसेस यूज कर रहा है, तो वो रिलीज नहीं हो रहे हैं. So these are quite useful objects. So they are not getting released. They have been promoted to generation 3. Everybody okay with this point? Generation का concept समझ में आया? ओके. तो अभी जो फिर से वापस जाते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जब हमारे पास इनफ मेमोरी नहीं रहेगी, when you try to create an object but there is not enough memory, that is where CLR will call the garbage collector. मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनली चल रहा है, ठीक है ना? But let's say, but whenever the garbage collector will be called, it will do a lot of operations. मतलब बहुत सारा क्लीन अप करेगा, शिफ्टिंग करेगा. इसके वजह से मेरा जो एप्लीकेशन है, it will be almost like hanged state में पहुंच जाएगा, क्योंकि सारे रेफरेंसेस मॉडिफाई हो रहे हैं. अंडरस्टूड? सो इट विल बी लाइक फ्रोजन स्टेट. अभी हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग सकता है. तो कभी कभार क्रिटिकल एप्लीकेशन में ये भी नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं चाहिए अभी कि समझो दिन का भी दोपहर का समय है, 12 बज रहे हैं, 12 बजे तो सबसे ज्यादा रश होता है, उस समय तुम ऐसे फ्रोजन स्टेट में चले जाएगा एप्लीकेशन. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल.
सो वी हैव अनदर सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन? कि जिस वक्त मेरे एप्लीकेशन पे ज्यादा लोड नहीं है, लेट्स से मिडनाइट 2 पीएम 2 AM सॉरी 2 AM को मुझे लगता है कि नहीं भाई यहाँ तो कुछ भी ज्यादा लोड नहीं है, क्यों ना उस समय हम गार्बेज कलेक्टर को बोलें कि अभी तुम क्लीन अप करके रख दो, अभी तो मेरे एप्लीकेशन को ज्यादा लोड नहीं है, सो इफ यू डू इट राइट नाउ इन द आफ्टरनून आई विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. सो डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया? So we are trying to clear up the memory a little bit well in advance. हम पहले से वो करके रखना चाहते हैं. So if you want to achieve this, then we have a method called as system.gc.collect. So this method is used to explicitly call the garbage collector. ये क्या करता है? garbage collector को call करता है. So what this will do, ये भी वही काम करेगा जो अभी हमने डिस्कस किया. But the only thing is that we are explicitly making a request कि हम पहले से ही डिसाइड करके उसको कॉल कर रहे हैं, हम उसका वेट नहीं कर रहे हैं. वो कॉल करेगा तो मुझे वो नहीं चाहिए कि बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट हो. That we don't want. So we are doing it right now. This point is clear, everybody? So this is the explicit call to garbage collector. Understood? Now, whenever we write system.gc.collect, our intention is to call the garbage collector, but it is still considered as a request. CLR बोलता है तुम वो कॉल करना चाहते हो ना, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट अपने पास रखता हूँ, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं गार्बेज कलेक्शन करूंगा, अदरवाइज आई विल इग्नोर योर रिक्वेस्ट. Got it? So you cannot forcefully call the garbage collector. It is just a request to the CLR to call the garbage collector. अब इसमें एक और ट्विस्ट है. जब आप system.gc.collect बोलते हो तो ये क्या करेगा? जनरेशन 1 को भी कलेक्ट करेगा, 2 को भी कलेक्ट करेगा, 3 को भी कलेक्ट करेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो आप ये कर सकते हो कि आप बोलो कि नहीं भाई, तुम ना सिर्फ gc.collect एंड यू माइट पास अ पैरामीटर दैट इज 1 पास किया, मतलब ये क्या होगा? सिर्फ जनरेशन 1 के ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेगा. तो थोड़े से ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, कलेक्ट करके फटक से वापस आएगा. सो दैट विल कंज्यूम लेसर मेमोरी, लेसर टाइम आई शुड से. या फिर आप उसको 2 पास कर सकते हो. 2 का मतलब होता है जनरेशन 2 भी आएगा उसमें, 1 भी आएगा. और यदि आपने 3 पास कर दिया तो 3 में 3, 2, 1 तीनों भी आ जाएंगे. So it is as good as you don't pass anything, it will consider all the generations. Is it okay everyone? मेरे ख्याल से नंबर ना मैं उल्टा बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे. 0, 1, 2 ऐसा कुछ रहता है. 1 मिनट, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक. जनरेशन objects generation 0, generation 1, generation 2 is associated with short-lived object and medium-lived object. generation 2 0 है, 0, 1, 2 है, ठीक है, जो मैंने 1, 2, 3 बताया उससे से. So is that okay now? Everybody understood the garbage collection concept? Any doubt, any question? हेलो, क्या हुआ? क्लियर है कि नहीं है कि रिपीट करूं? Should I repeat this or is it okay? जनरेशन वाला पार्ट रिपीट करूं ऐसा बोल रहे हो अभिजीत? Okay. See, so what I said is, whenever the garbage collector is called, जैसे अपने पास यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, so there are multiple objects over here. So when the garbage collector is called, it might delete some of the objects. जो ऑर्फन हो गए थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें से डिलीट होंगे. ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये गार्बेज कलेक्ट नहीं हुए,
क्यों नहीं हुए? बिकॉज दे वर नॉट ऑर्फन्स। इसका कोई ना कोई तो पॉइंट कर रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट सर्वाइव हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हमने गार्बेज कलेक्टर को कॉल किया तो ये ऑब्जेक्ट सर्वाइव हो गए, इसलिए हम इनको जनरेशन 0 नाम देते हैं फर्स्ट टाइम। बाद में क्या होगा, और भी ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे, मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। फिर क्या होगा, फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स डिलीट होंगे, सो सम ऑब्जेक्ट्स अगेन गेट डिलीटेड। अगेन सम ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये ऑब्जेक्ट बचा है ना, तो ये जनरेशन 0 में जाएगा और ये वाला जनरेशन 1 में चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब गार्बेज कलेक्शन कॉल होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड अगेन सम ऑब्जेक्ट माइट सर्वाइव, दैट विल बी जनरेशन 0। तो जो पहली बार उसके ऊपर से गार्बेज कलेक्टर गया है ना, तो वो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, जनरेशन 0। जो एक बार ऑलरेडी हो चुका है, सेकेंड टाइम में 1, थर्ड टाइम में जनरेशन 2। सो जनरेशन 2 इज द ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड नाउ अभिजीत, ये पार्ट क्लियर है? तो अगर हम सिस्टम डॉट जीसी डॉट कलेक्ट मेथड को कॉल करते हैं, विदाउट पैरामीटर पास करते हैं, तो ये 0 1 2 सभी जनरेशन के ऑब्जेक्ट को लेगा। लेगा मतलब अगर वो यूज में है तो नहीं लेगा, अगर वो फ्री हो चुका है ऑब्जेक्ट, मीन्स इट इज नाउ एन ऑर्फन ऑब्जेक्ट। सो वी हैव एन ऑर्फन ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑर्फन ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं ऑर्फन ऑब्जेक्ट्स। सो देयर विल बी सम ऑब्जेक्ट्स विल बी जनरेशन 0, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जनरेशन 1, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो जनरेशन 2 में होंगे। तो अगर आप यहाँ पर 2 पास कर, सॉरी 0 पास कर दोगे, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इन ऑब्जेक्ट्स को ले लेगा। तो थोड़े ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करता है ना, तो जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 लिख देते हो, 1, सो 1 मीन्स 1 एंड 0, ये दोनों भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी चलेगा, और फिर आ जाता है 2। 2 में फिर 2 कुछ नहीं दिया या 2 दिया, एक ही मतलब है। तो 0 1 2 ये तीनों मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज जस्ट टू स्पीड या टाइम वाइज हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं कि मुझे जल्दी से रिलीज करके चाहिए मेमोरी, इतना देर तक मुझे वेट नहीं करना है। सो वी कैन गिव 0, दैट इज द पॉइंट। अंडरस्टूड नाउ? यस, एनी अदर क्वेश्चन? डिड यू सी वन मोर क्वेश्चन दैट वाज फाइनलाइज मेथड? देखा था फाइनलाइज, क्या होता है फाइनलाइज बताओ? यस, कम ऑन, व्हाट इज फाइनलाइज मेथड? You are not telling unmanaged. No, that is not correct answer. Implicit call by CLR. Okay, but what is the purpose of finalized method? तुमको आंसर पता नहीं, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हो मेरे से, हाँ? So finalized method is the destructor. So हमें डिस्ट्रक्टर अगर लिखना है सी शार्प में, तो वो इंटरनली CLR लेवल, मैंने आपको बताया था वो IL कोड में कन्वर्ट होता है अपना सोर्स कोड. So when the source code is converted into IL code, it is termed as finalized method. So it is nothing but the destructor. So what is the purpose of the destructor? To release the resources which were allocated for the object. ठीक है, तो हाँ, फाइनलाइज मेथड को कौन कॉल करता है? इट इज कॉल्ड बाय CLR, सॉरी CLR नहीं, सॉरी, गार्बेज कलेक्टर। क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिलीट कौन करता है? हु डिलीट्स द ऑब्जेक्ट?
करेक्ट। सो गार्बेज कलेक्टर डिलीट करता है, तो डिलीट करते समय वो क्या करेगा, उसके ऊपर उसका फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा। And then once the destructor is called, then it will release the memory block. So I hope now all the questions are clear. एक बार go through कर लो, कुछ पूछना है तो पूछो. Method finalize is used to free unmanaged resource before the object is destroyed. हाँ बेटा, लेकिन ये unmanaged resource, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो आप, क्योंकि एनीवेज बाकी मैनेजमेंट तो सीएलआर करता ही है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो लेकिन सीएलआर कैन नॉट टेक केयर ऑफ द अनमैनेज्ड रिसोर्स। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास सी शार्प में एक ऑप्शन है कि आप एक अनसेफ ऐसा ब्लॉक लिख सकते हो, और उसके अंदर ना, जैसे आप सी में पॉइंटर्स वगैरह बनाते हो ना, वैसे आप पॉइंटर्स यहाँ पे बना सकते हो। एग्जैक्ट सिंटैक्स तो मुझे याद नहीं है, बट समथिंग लाइक दिस यू कैन राइट। So when you start using pointers in C sharp, it is considered as unsafe code. So unsafe code is something which CLR says, भाई मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, हो सके तो तुम इसको अवॉइड ही करो, this is not my responsibility. So this is the programmer's responsibility. तो अगर तुमने कुछ memory allocation, so such type of resource is known as unmanaged resource, which the CLR says I will not take care of it. तो अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो वो रिलीज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी है। So we need to take care of releasing this memory block. So that job can be done inside the finalize method. ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो उसके पहले जितना भी अनमैनेज्ड रिसोर्स है वो रिलीज कर दो। डन, क्लियर है सबको? ओके, एनी अदर क्वेश्चन और shall we move ahead? एक्सेप्शन प्लीज रिपीट कर दो। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग ज्ञानेश्वर तुमने पढ़ा है ना जावा? मैं एक बार सिंटैक्स बता दूं तो चलेगा ना? कॉन्सेप्ट पता है? You all know the concept of exception handling, right? Yes, yes, I will do that. Wait, हाँ, फिर मेरा लिंक क्यू का कॉन्सेप्ट है कि कहना है प्रोजेक्ट के बना के। Let's say there is a variable that is integer x, and now we are asking the user to enter a number. Okay, let's say have a look at, हम इंटरव्यू में लिंक की तक ही आएगा ना, मैंने उनको मेल तो लिख दिया है श्रेयस कि इतना मैंने कवर किया है, अब वो फिर क्या करेंगे वो मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल। ठीक है, आई हैव ड्रॉप द मेल ऑफ व्हाटएवर टॉपिक दैट कवर्ड इन द सेशन। ओके, एक्चुअली मैं तो उससे ज्यादा ही पढ़ा दी हूँ, मुझे ऐसे लगता है, जो उन्होंने नहीं भी बोला था, कलेक्शंस वगैरह भी उन्होंने नहीं बोला था। सो होपफुली इट शुड वर्क, लेट्स सी। मुझे भी टेंशन है तुम लोग का कल क्या होगा परसों। ठीक है, ओके, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, लेट मी रन इट अगेन। So basically I am expected to enter a number. What if I enter a string? Can you see this? There is unhandled exception.
So that means something unhandled has happened, something which was not expected or has happened. I was supposed to type a number, but I have, by mistake or by intention, I have typed a string. So that is a problem. So my program has crashed suddenly. So this is the line which, might create a trouble. So what we can do is we can encapsulate it inside the try block. So the basic, means the parent class is exception class. There is a message property that will tell us exactly what went wrong. तो अब ये x जो है अपना वो तो रन तभी होगा जब सक्सेस होगा. So let's execute this block. So if I enter a number, it is running fine. But if I enter a string, you can see now my program is not crashing, but it is telling me that input string was not in the correct format. Got it? ठीक है, तो वो कैसे किया हमने? ट्राई कीवर्ड है, यूज अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, कैच कीवर्ड है, और उसमें ये सबसे ज्यादा जो पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन क्लास. सो दिस इज नोन एज जनरलाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलर. बट समटाइम्स when we are dealing with exception handling, depending on the error, we might have to perform different actions. So here we can write catch format exception. So now I am talking about a very specific exception handler, that is format exception. क्योंकि ये जो टाइप का एरर आ रहा है वो कौन सा है? फॉर्मेट एक्सेप्शन है. सो लेट मी, आई एम इन फॉर्मेट एक्सेप्शन. So you can see I am in format exception. वो generalized वाला call नहीं होगा. This one is getting called. This is known as the specialized exception handler. और ये जो रहता है इसको हम कहते हैं generalized exception handler. ठीक है, डन एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे हैं क्या बोलते हैं अपन, specialized. There are so many file not found exception like this, so many several exceptions are there. Sometimes even though you have handled the exception but you want to rethrow the exception, so for that we have the throw keyword. So throw ex you may write. So what is it going to do? Throw, sorry, सिर्फ throw लिखा तो चलेगा. So it is going to rethrow the exception. आई होप यू ऑल नो रीथ्रो द एक्सेप्शन. दोनों में था वो, पाइथन में भी है, सी प्लस प्लस में भी हमने पढ़ा था, एंड जावा में भी है ना. रीथ्रो कर सकते हैं हम एक्सेप्शन. तो ये रीथ्रो हुआ मतलब वो हैंडल किया उसने और फिर से वही एक्सेप्शन रीथ्रो हो गया. तो दैट इज वेयर इट इज क्रैशिंग, बिकॉज जो नेक्स्ट टाइम थ्रो हुआ उसको कोई कैच नहीं कर रहा है. अंडरस्टूड दिस मच? हेलो एवरीवन, इज ओके? बाकी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा वही सब सेम है कॉन्सेप्ट, हाँ, कुछ ज्यादा अलग नहीं है. Let's go ahead with age. Suppose console dot write line, enter your age. ठीक है, अभी हम यूजर को बोल रहे हैं कि आप अपना एज एंटर करो. ये जो एज है वो अगर वैलिड एज की बात करें हम, तो लेट्स से 0 to 150 एट द मैक्स. तो 150 तक एज हो सकता है किसी का. उसके उससे ज्यादा एज किसी ने सुना है क्या? somebody has lived like 170 years, अभी भी कोई जिंदा है क्या? मैंने तो नहीं सुना. न्यूज में उस दिन आया था द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ एज 129 पास्ड अवे, ऐसा कुछ आया था मैसेज. तो वो ओल्डेस्ट पर्सन 130 का एज का है, तो फिर भी हम लोग 150 लेकर चल रहे हैं.
But if someone enters the age as 200 or 2000, can I say it's an invalid age? उस invalid age के समय. So if age is below 0 or age is greater than 150, can we say it is an invalid age? उस केस में हम लोग एरर थ्रो करना चाहते हैं. सो आई कैन से थ्रो न्यू. बट आप किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करोगे? सो देर आर सो मेनी. अभी फिलहाल तो मुझे पता नहीं, तो फॉर्मेट एक्सेप्शन ही अगर हमने थ्रो कर दिया. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो अगर हमने 200 एंटर कर दिया, सो यू कैन सी इट इज थ्रोइंग फॉर्मेट एक्सेप्शन. बट ये कुछ जम नहीं रहा है ना, एज के रिलेटेड है और आप फॉर्मेट एक्सेप्शन लिख रहे हो. तो इससे बेटर होगा कि ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, इन वैलिड एज एक्सेप्शन. डज दैट मेक मोर सेंस टू अस? दिखने में सुनने में सही लग रहा है? सो वी वांट टू क्रिएट दिस एक्सेप्शन. सो दिस इज अ कस्टम एक्सेप्शन, हमारा खुद का. तो यहाँ पर मैसेज देगा शायद जनरेट. यस. तो उस नाम से तुम क्लास बना दो. वाह. और क्या चाहिए लाइफ में? दिख रहा है उसने एक्सेप्शन से इनहेरिट करके बना दिया क्लास. और तुमको कौन सा मैसेज डालना है वो मैसेज डाल दो. सो आई वांट टू हैव अ स्ट्रिंग मैसेज हियर. ये मुझे आज पढ़ाना है. हाँ, तुम लोगों को लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको. बेस मैसेज. लेट्स टेस्ट दिस. हाँ चलो, ये अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये सब हटा देती हूँ. लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय ऑल दिस. So what you have to do, you have to create a class called as invalid age exception. So it will be inherited from the exception class, and there is also something exception class भी ले सकते हैं और application exception भी ले सकते हैं. This is also used for user defined exception. So here we can have a method public string एरर क्यों दे रहा है? एक मिनट. इट इज रीड ओनली प्रॉपर्टी. अच्छा, इसको सेट नहीं कर सकते हैं. लेट्स ट्राई दिस वन. तो जब हम इनवैलिड एज एक्सेप्शन बनाएंगे तो उसमें एक मैसेज को पास करना है एज अ पैरामीटर. Okay, but here I should write base message. Remember, member initialization list हम पास करते हैं. So here I should pass a message that is invalid age.
So now let's execute this code. So this time हमने custom खुद का बनाया हुआ exception raise किया है. So you can see here invalid age exception and there is a message called as invalid age. तो इसको अगर हम handler लगाते हैं, so we put it inside a try block. So ex dot message property is there. So you got the message as invalid age. So this is how you can create a custom exception also. Understood everyone? Clear है यहाँ तक? Now I'm going to explain the events and delegates concept one more time. So basically the idea is that whenever we are having a function, so say void demo, some method I have written, okay? So this part is our function definition. We have defined this method. And in the normal scenario, we just go ahead and call this. तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन और हम जनरली क्या करते हैं डेमो को कॉल कर देते हैं. सो दिस इज अवर फंक्शन कॉल. That's a normal case. But there will be certain cases where we will define the method. हम method को तो define करेंगे. But we won't be able to, we will not be responsible for calling the method. हमारा काम सिर्फ method को define करना है पर हमें उसको call नहीं करना है. Call कोई और करेगा. Someone else will call this method. कब कॉल करेगा पता नहीं, जब जरूरत होगी तब. जैसे मेरा काम तुमको पढ़ाना है उतना ही मेरा कंट्रोल है, राइट? इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय समवन एल्स व्हेन आई डोंट नो, सो दैट इज नॉट माय कंट्रोल. पर तुमको पढ़ा कर मैं दे रही हूँ, किसको? आर्मस्ट्रॉन्ग के हवाले कर दूँ, ठीक है? So it is something like that. So what task has to be done, that is under our control. We define that part. बनाने के बाद हमने उसको किसी को दे दिया. So let's say this is the person. इसको हमने ये टास्क दे दिया. तो इसके पास वो फंक्शन देंगे कैसे? बट you cannot give it like this because this is the function call. So what you give is just the name of the function. So when you refer to the function by just its name, it is considered as the address or the reference of the function. Understood? जब आप फंक्शन का सिर्फ नाम लिखते हो वो क्या कहलाता है? इट इज द रेफरेंस ऑफ द फंक्शन और वी कैन से एड्रेस ऑफ द फंक्शन. तो वो एड्रेस मैंने उस फंक्शन पर्सन को दे दिया. जिसके पास एड्रेस है, जिसके पास रेफरेंस है, वो उसको यूज कर सकता है. अंडरस्टूड? तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे रेफरेंसेस हम उसको देकर रख सकते हैं. तो ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है, वो अपने पास रख लिया. जैसा सिचुएशन आएगा वैसा मेथड वो खुद से कॉल करता चला जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट वैष्णवी? वैष्णवी ने पूछा ना इवेंट्स एंड डेलीगेट्स. ये क्लियर है? नाउ अगर जैसे कोई मेथड हमने लिखा है, सो लेट्स से आई हैव रिटन अ टेस्ट मेथड. ये टेस्ट मेथड है. अब मैं टेस्ट मेथड को कॉल कर रही हूँ एंड आई एम पासिंग हियर E1. मैंने यहाँ क्या लिखा है? E1. E1 यहाँ पास हो रहा है. सो व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? व्हाट इज E1 हियर? कैन आई से दिस इज द आर्ग्यूमेंट वी आर पासिंग? तो कुछ भी डेटा पास होता है तो उसका यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है कुछ कि नहीं?
यस एवरीवन, क्या होगा यहाँ पे? इवन मैंने पास किया तो यहाँ क्या लिखना है? नॉर्मल मेथड आई एम आस्किंग. Okay, look at this now. I am calling a function that is test function and I have passed here 10. So now it's time to define this method. So static test. यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? What should I write inside these brackets? हाँ, क्या लिखूं? वो बताओ ना, एग्जैक्टली बताओ क्या लिखना है. एक्स लिख दूं, चलेगा? नो, वी हैव टू राइट हियर इंटीजर. क्यों इंटीजर तुमने बोला मुझे? Why you said integer? Because you saw that I am passing here 10, correct? तो जो डेटा पास हो रहा है उसके बेस पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं डेटा टाइप क्या होगा. अब मैं यहाँ पर एक मेथड लिख रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक फन डेमो नाम का एक मैंने मेथड लिखा. नाउ व्हेन आई एम कॉलिंग दिस फन डेमो, I am calling this fun demo and I am passing this test, suppose. What is this test now? ये टेस्ट क्या है? मेथड है ना, तो ये इसको क्या जा रहा है? मेथड जा रहा है. सो इफ यू आर पासिंग, यहाँ पे आप टेस्ट को पास कर रहे हो तो टेस्ट यहाँ पे जा रहा है. तो जैसे जब मैंने यहाँ 10 लिखा था तो तब तुमने मुझे बताया कि यहाँ पर इंटीजर एक्स मुझे लिखना चाहिए, तो ये ऐसे चला जाएगा. तो अगर हम मेथड को पास कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप लिखूं मैं? व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? सम डेटा टाइप आई हैव टू यूज, राइट, which can hold the address of the function. Are you understanding what I am saying? यहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा ना. So something which can hold the address of the function is called as a delegate. So delegate can hold address of functions. ये बात तो समझ में आ गई. अब उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे टाइप का फंक्शन का एड्रेस, बिकॉज फंक्शन कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स. तो अगर यहाँ पर हमने एक डेलीगेट, अभी जैसे ये टेस्ट फंक्शन था, सो टेस्ट फंक्शन वी हैड डिफाइंड विद एन इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप एज void. तो जो डेलीगेट हम बनाएंगे उसमें ये बताना पड़ेगा कि ऐसा फंक्शन का एड्रेस जिसका रिटर्न टाइप void होगा और जो एक इंटीजर एज अ पैरामीटर ले रहा है. इस वजह से अगर तुम उसको कुछ एबीसी मेथड पास करो जो 2 इंटीजर ले रहा है एज अ पैरामीटर और वो पास करने जाओगे तो ये एरर देगा. दैट इज व्हाई वी से डेलीगेट्स आर टाइप सेफ. टाइप को वो एकदम मैटर करता है, कुछ भी पास करो ऐसे नहीं चलेगा. सी प्लस प्लस में हम लोग सिर्फ फंक्शन पॉइंटर बोल के छोड़ देते हैं. सो इट कैन बी डाउनकास्टेड इनटू वॉइड, और वॉइड में फिर तुम कुछ भी पास करो चल जाता है. सो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो टाइप को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. ये बात समझ में आई?
अब मैं एक सवाल और पूछ रही हूँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 10, व्हाट इज दिस 10 ओवर हियर, और यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर x, और मैंने आपको क्या बोला, ये 10 इसके लिए जा रहा है, सो व्हाट इज दिस 10, इसको हम क्या कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, व्हाट इज दिस 10, कैन आई से इट्स अ वैल्यू आई एम यूजिंग, करेक्ट, इट्स अ वैल्यू, देन व्हाट इज दिस int ओवर हियर, x इज अ वेरिएबल राइट, बट व्हाट x तो वेरिएबल है, ये तो पता है आपको, तो int क्या है, टाइप, डेटा टाइप। अब 10 की जगह मैंने यहाँ पर टेस्ट लिख दिया, सो कैन आई से नाउ दिस टेस्ट इज माय वैल्यू, ये वैल्यू हम पास कर रहे हैं किसको, तो मैंने कुछ तो लिखा माय डेलीगेट टी, सो टेस्ट किसको पास हो रहा है, टी को, तो टी इज द वेरिएबल, देन व्हाट इज दिस माय डेल, कैन आई से दिस इज द टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप ही हुआ ना, ये समझ में आ रहा है। तो नाउ दिस इज रेफरेंस टाइप, जैसे कि एम्प्लॉय होता है, स्टूडेंट होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है। तो अब सिंपल एक है, जैसे मुझे क्लास बनाना है एम्प्लॉय, सो व्हाट वी डू, वी यूज क्लास कीवर्ड, वी यूज द नेम ऑफ द क्लास से एम्प्लॉय, एंड देन वी यूज अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, सो दिस विल क्रिएट द क्लास एम्प्लॉय। ये क्लास एक बार बन गया, दिस इज स्टेप नंबर 1। Once the class is created, we write here EMPE is equal to new EMP. So by writing this, what we did is we created the object. ये दो स्टेप हो गए, फिर बाद में हम ई डॉट जो भी अपने को कॉल करना है, दैट इज द स्टेप नंबर 3, वी यूज इट, करेक्ट है। तो डेलीगेट में भी ये तीनों स्टेप फॉलो होते हैं, पहले हम टाइप डेलीगेट बनाते हैं, फिर उस टाइप डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे ये दिख रहा है, और फिर उस डेलीगेट को हम यूज करते हैं, गॉट इट। ऐसे याद रखो, क्लास एम्प्लॉय, उसका ऑब्जेक्ट, फिर उसको यूज करना। डेलीगेट के लिए भी ये 3 स्टेप्स हैं। तो कैसा, सबसे पहले डेलीगेट को बनाना है, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इसके लिए डेलीगेट बनाना है, तो ये एज इट इज कॉपी करो। सो फर्स्ट यू कॉपी द सिग्नेचर, सो void टेस्ट इंटीजर x, पहले तो तुम ऐसा एज इट इज लिख लो, ठीक है। अब उसके सामने क्या बना रहे हैं हम, डेलीगेट। तो जैसे क्लास लिखते हैं, वैसे क्लास कीवर्ड की जगह क्लास बनाने के लिए, हाँ सॉरी, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है, तो डेलीगेट बनाने के लिए डेलीगेट कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। सो डेलीगेट, कौन सा डेलीगेट, ऐसे मेथड का डेलीगेट जिसका रिटर्न टाइप हो void और जिसका पैरामीटर हो int x, फिर उसको जैसे यहाँ पे अपन टेस्ट, तो एक्चुअल मेथड का नाम है, तो टेस्ट मत लिखो, एनी अदर नेम यू यूज, सो माय टेस्ट डेलीगेट, ऐसा एक नाम लिखा। सो व्हेन यू आर यूजिंग द डेलीगेट कीवर्ड, दैट मीन्स यू आर डिफाइनिंग अ डेलीगेट। ये बात समझ में आई। और डेलीगेट बनाते समय ये सिंपल है, इसको कॉपी करो एज इट इज, वो पूरा कॉपी कर लो, और ये जो टेस्ट है ना, टेस्ट की जगह जो कुछ तुमको तुम्हारे मन से जो नाम देना है वो नाम दे दो। सो डेलीगेट void some name and the bracket parameters, this is our step number 1। तो ये क्या बना, डेलीगेट टाइप बन गया, डेटा टाइप बन गया अपना, मीन्स व्हाट यू हैव क्रिएटेड इज अ डेटा टाइप। जैसे क्लास भी एक डेटा टाइप है ना, तो वैसे हमने डेलीगेट एक टाइप बना दिया। नेक्स्ट स्टेप, क्लास बनने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या देखा था, उसका ऑब्जेक्ट बनाना। सो स्टेप 2, so what we create is the object, so how to create the object, so create object कैसे, हाँ, तो अब क्लास देखो, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया हमने, क्लास एम्प्लॉय, सो दिस इज द नेम, एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो वैसे ही डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो डेलीगेट का नाम जो अपन ने अभी बनाया है, तो डेलीगेट का नाम अपने केस में कौन सा है, माई टेस्ट डेलीगेट, D1 is equal to new my test delegate. Now in the bracket
आपको वो मेथड या तो अभी पास करना है तो अभी पास करो, नहीं तो बाद में पास करो. हियर यू हैव टू पास द मेथड whose signature matches with void int. तो मेरे पास वो मेथड ऑलरेडी है टेस्ट. So if you observe this line, what do you understand by this line? इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ डेलीगेट विद मेथड एज पैरामीटर, करेक्ट. तो D1 मतलब किसका एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है? D1 का पर्पस क्या था? टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अ मेथड, राइट? तो कौन से मेथड का एड्रेस है? टेस्ट का. तो D1 is holding the address of test. So step number 3 is to use it. तो यूज कैसे करना है? D1 like this. जैसे आप टेस्ट को कॉल कर सकते थे वैसे अब आप डेलीगेट को कॉल कर सकते हो. तो डेलीगेट को कॉल किया तो वो एक्चुअली टेस्ट को ही इंटरनली कॉल करेगा. ये पार्ट क्लियर है वैष्णवी? अभी डेलीगेट कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है, दिस पार्ट इज ओके. तो अब हम ऐसे, मेरे पास और भी यदि मेथड्स होते तो हम क्या कर सकते थे? D1 प्लस इक्वल्स टू fun1, D1 प्लस इक्वल्स टू fun2, D1 प्लस इक्वल्स टू fun3. ऐसे हम लोग मेथड्स को डाल सकते हैं. तो अब जब हम D1 को कॉल करेंगे विथ वट एवर डेटा वी आर स्पेसिफाइंग, तो ये लाइन से टेस्ट को कॉल करेगा, फिर fun1 को कॉल करेगा, फिर fun2 को कॉल करेगा, फिर fun3 को. तो ऐसे 3-4 मेथड्स एक ही कॉल में अपने निपट जाएंगे. समझ रहे हो? The other day, I think in your batch or in some other batch, I was giving one example कि अगर म्यूजिक का एग्जाम्पल तुम्हारे बैच में लिया था क्या मैंने? सॉन्ग एक कंपोज कर रहे हैं हम, डिड आई टेक दिस एग्जाम्पल? हाँ. तो समझो एक मूवी में कोई सॉन्ग डालना है, ठीक है? तो सॉन्ग डालना है, ये तो आ गई बात. डायरेक्टर ने बोला यहाँ पे एक सॉन्ग होना चाहिए, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी वांट अ सॉन्ग to be added in a movie. So someone should write the lyrics, right? Lyrics. So write lyrics. लिरिक्स राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? म्यूजिक कंपोज. म्यूजिक कंपोज करने के बाद क्या होगा? सम सिंगर शुड सिंग इट एंड देन व्हाट इट शुड बी डन? ऐड टू मूवी, राइट? दीज आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो. ये जो सीक्वेंस है ये हम चेंज कर सकते हैं क्या? कैन वी ऐड टू मूवी, देन वी कैन कंपोज द म्यूजिक, देन राइट द लिरिक्स एंड देन सिंग द सॉन्ग? ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कर सकते हैं क्या इसको? नो. सो दिस इज वेयर द मल्टीकास्ट डेलीगेट इज इम्पोर्टेंट. इंडिपेंडेंटली आप अगर फंक्शन को कॉल करोगे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन मैंने वो तो उसको पहले से ही एक सीक्वेंस में बांध के रख दिया है. तो जब तुम D1 को कॉल करोगे तो वो उस सीक्वेंस में कॉल हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप. तो जनरली ये प्रोसेस बेस्ड में काम आता है ऑटोमेशन में, कि यही स्टेप पहले होना चाहिए, फिर ये स्टेप होना चाहिए, फिर वे स्टेप. तो ऐसे सबको एक लाइन से समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप आप अरेंज करो और इसी सीक्वेंस में वो चलना चाहिए. सो दिस इज वेयर द डेलीगेट पार्ट कैन बी यूज्ड. टिल दिस पॉइंट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड? ठीक है. डेलीगेट तो बन के रेडी हो गया, अपना तैयार हो गया.
अब जैसे ये था, ये मूवी वाला एग्जांपल लेते हैं कि लिरिक्स भी लिख लिए हैं, म्यूजिक कंपोज भी हो गया है, सिंगर ने सॉन्ग सिंग भी कर दिया, ऐड टू मूवी। लेकिन ये मूवी में ऐड करना कब है? तो डायरेक्टर बोल रहा है मैं डिसाइड करूंगा, तुम मुझे दे दो सॉन्ग। तो ये पूरी चारों चीज हम किसको दे दे रहे हैं? डायरेक्टर को दे दे रहे हैं। और डायरेक्टर उसको कब ऐड करेगा, कहाँ पर मूवी में ऐड करेगा, वो डायरेक्टर डिसाइड करेगा। So the adding of the song into the particular movie at the particular position is the event. तो जब वो इवेंट होगा तो ये सारे एक्शन परफॉर्म होंगे। डन? क्लियर है? So once the delegate is ready, the next step is to attach it with the event. So how to create an event? So event E1 सिंपल। इवेंट ऑलरेडी एक बना बनाया डेटा टाइप है, उसको रजिस्टर किया, उसको इवेंट। लेकिन इवेंट बनाते समय ये भी बताना पड़ता है कि ये किस डेलीगेट के साथ काम करेगा। एनी इवेंट कैन नॉट वर्क विथ एनी डेलीगेट, सो दैट टाइप इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर अपने को डेलीगेट का नाम देना पड़ता है। इट कैन बी रजिस्टर्ड विथ अ स्पेसिफिक डेलीगेट। मतलब अब हमने इसमें क्या बता दिया, इवन जो इवेंट है वो हमेशा माई टेस्ट डेलीगेट के साथ ही काम करेगा। दैट इज वन काइंड ऑफ टाई अप वी हैव डन। तो अब इवेंट और डेलीगेट को रजिस्टर कैसे करना है? ऐसे। So plus equal to operator is important. ठीक है? Using the plus equal to operator, what we are doing? We register the event with the delegate. Understood? ये हो गया। तो अब जब ये इवेंट कॉल होगा कंसोल एप्लीकेशन में, तो आपको मैंने ऐसे बताया था, बटन क्लिक में एक्चुअली यूआई से आप बटन पे क्लिक कर दो तो बटन क्लिक इवेंट हो गया, पीछे से उसने वो बटन क्लिक पे जो कोड लिखा था हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सो द डेलीगेट गॉट एग्जीक्यूटेड। I hope now it is okay, everyone. Event delegate concept is clear. तो कल का लिंक क्यों थोड़ा सा बचा है वो कंप्लीट करूं? So I hope all of you have understood the concept till this point. Whenever you want to apply link concept from X in ARR, where condition select X. ऐसा ये फॉर्मेट होता है उसका लिखने का। सो दिस इज लिंक टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लिंक लगा के कुछ तो भी क्वेरी उस पर कर रहे हो। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू विच एवर ऑप्शन यू आर यूजिंग इट शुड बी आई इन्यूमरेबल और आई क्वेरिएबल। यहाँ तक हमने किया था। नाउ वी आर लेफ्ट विथ वन मोर, व्हाट यू से, डेटाबेस के साथ लिंक को कैसे यूज करना है वो अभी सिखाने जा रही हूँ। ये वाला पार्ट हो गया। सॉरी हाँ, कल मेरा रिकॉर्डिंग मैंने ओपन किया था शेयर करने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे वो मिस हो गया। तो बहुत बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि रिकॉर्डिंग शेयर ही नहीं हुआ है, जब तुम लोग का रिक्वेस्ट देखा तो। तो पता नहीं तुमने कल का किया कि नहीं किया। कल क्या किया? लिंक लिंक का हो गया जितना कल पढ़ाया था उतना? बड़ा इंपॉर्टेंट है हाँ? वो लोग हाईलाइट करके दिए हैं मुझे लिंक, दैट इज इम्पोर्टेंट।
डॉट करंट मशीन के लिए लिखना है ना, कोई और मशीन रहेगा तो वो मशीन का नाम लिखना पड़ता है, और फिर now there is another shortcut technique कि वो एसक्यूएल कमांड पास करने से अच्छा आप यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बीपीटी कॉम ऐसा भी दिया तो चलता है। Okay, now I'm taking one simple example. So this time our data source is the data set. सारा डेटा अपना किस में आ गया, डेटा सेट में आ गया। अब उस पे अपने को लिंक अप्लाई करना है। Okay, so what we can do is ds dot tables 0 dot, दिख रहा है आपको मेथड, as enumerable. What it is going to return is a collection of data row. So we don't really have to bother about it because I have already told you in this format. ठीक है ना? Are you able to understand this line now? ds.table0 will represent the department table, right? We are applying the as enumerable method so that we can iterate through it by writing the for loop. This part you are able to understand, everyone? So as of now, let's write here var selected is equal to from var d in dpts select d। अभी मैं ज्यादा वेयर भी नहीं डाल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जितना है सब मुझे दे दो। सो नाउ लेट्स प्रिंट इट, देखते हैं ना उसके अंदर क्या आ रहा है। फॉर ईच, मुझे डेटा टाइप पता नहीं तो मैंने वेर लिख दिया, वेर आर इन सेलेक्टेड। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ऑब्जर्व द आउटपुट, व्हाट इट इज शोइंग। मुझे क्या मिल रहा है, डेटा रो डेटा रो डेटा रो मिल रहा है, मतलब सारे डेटा रो के ऑब्जेक्ट्स हैं। सो यू माइट राइट हियर स्क्वायर ब्रैकेट 0, okay, dot
टू स्ट्रिंग नहीं लिखा तो भी टू स्ट्रिंग तो वो कॉल करेगा. 0 मतलब डिपार्टमेंट आईडी आउटपुट आना चाहिए. वी गॉट द डिपार्टमेंट आईडी एज एन आउटपुट. अगर यहाँ पर मैं 1 लिख दूं तो डिपार्टमेंट का नेम आउटपुट में आ जाएगा. गॉट इट. सो आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम. ऑब्जर्व दिस. ये पार्ट तो आपको ओके है डेटाबेस कनेक्टिविटी का. So ds.table0.as enumerable we are using to convert it into enumerable format. Once you do this, you can apply the link concept here. ठीक है, यहाँ तक clear है everybody? Now coming to the syntax of link. So how we write it? From D in DEPTS. ये collection है, उस पे से एक एक उठाओ और उसी को सिलेक्ट कर दिया हमने, तो सिलेक्टेड में एक्चुअली सारे रिकॉर्ड्स आ गए और उसको तुम फॉर ईच लूप करके फेच कर रहे हो. So this doesn't make any sense because आप DPTS ही use कर सकते थे, but I just wanted to tell you the syntax. Now let's go ahead and write where. So where D dot, sorry. Now what does this D represent? Can you tell me? या मैं कहूँ कि D का डेटा टाइप क्या है बताओ. अच्छा DPTS क्या है वो बताओ. What is DPTS? What is this DPTS? What does it indicate? It indicates the table. पूरा डिपार्टमेंट टेबल को रिप्रेजेंट करता है. तो ये D क्या है? It is the row. Very good. So we can write where. Just give me a minute, students. Yes. So we can write here D. So when I write D square bracket 2. So 2 is for location, remember? इसका return type क्या है एक मिनट. It returns an object. So 2 dot to string. So we उसको आप किसके साथ मेजर कर रहे हो समझो पुणे. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से हियर. अगर मैंने ऐसा लिखा तो आप क्या समझोगे इससे. वो डिपार्टमेंट्स दे दो जिनका लोकेशन पुणे है. समझ रहे हो. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. So there's only one which is having finance. So अभी चेन्नई लेके देखते हैं. So this time I'm saying give me those departments whose location is Chennai. तो चेन्नई में डेवलपमेंट और एचआर है. आ रहा है समझ में ये कैसे करना है. लिंक कॉन्सेप्ट ऑन डेटाबेस. इसको लिंक टू एसक्यूएल बोलते हैं. ऑन एसक्यूएल वी आर अप्लाइंग इट. सो आई बिलीव एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट. लिंक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया. अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है. दैट इज नोन एज लैम्डा एक्सप्रेशन. Now what is this lambda expression? In simple words we say lambda expression is anonymous मेथड. ऐसा एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम नहीं. ऐसे मेथड को हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. लेट मी टेक वन एग्जांपल.
सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है जिससे मैं क्यूब निकाल सकती हूँ. सो आई विल डिफाइन वन मेथड डेफ क्यूब एंड आई सॉरी ना पाइथन, गलती से पाइथन का सिंटैक्स आ गया. int cube integer x and then I am saying return x multiplied by x multiplied by x. ठीक है. एक मेथड हमने डिफाइन किया जिसको एक पैरामीटर x पास किया और उस पे हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स. वही चीज अब हम लैम्डा में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं. सो हाउ यू विल राइट इट. सो लेट्स से इंट सम वेरिएबल से रिजल्ट इज इक्वल टू आई एम गोइंग टू राइट हियर इंट x और ये वाला साइन यूज करना है इम्प्लाइज. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x. मतलब x इज अ पैरामीटर, उस पैरामीटर पर ये ऑपरेशन करो. दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट, अप्लाई दिस एंड गिव मी द रिजल्ट. समझ में आ रहा है. जो भी एक्स पास हुआ है उस पे ये ऑपरेशन करके उसको रिटर्न करो. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन वी कैन जस्ट राइट इट इन वन लाइनर स्टेटमेंट. एकदम प्रिसाइज कोड हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं. गॉट इट. अब ये सिंटैक्स एज इट इज रन होगा कि नहीं पहले मुझे चेक करना दो. So now I am calling result and I am passing 10 as a parameter. तो 10 यहाँ पर चला जाएगा और उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म. एरर आ रहा है. Cannot convert typing because it is not a delegate. ठीक है, वो शायद ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, वो हम किसी जगह पे उसको कॉल करते हैं. बट दिस, इसका मेन ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ रहा है. x इज अ पैरामीटर एंड दिस ऑपरेशन वी आर अप्लाइंग. वो ऑपरेशन जो होगा उसका रिजल्ट रिजल्ट में स्टोर होगा. इतना आपको समझ में आ रहा है क्या. फिलहाल के लिए इतना जरूरी है समझना. डन. क्लियर है यहाँ तक. अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे. सो लेट्स टेक दिस लिस्ट. ये जो एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिया था, दिस इज द कंडीशन वी वर अप्लाइंग. तो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं. और emps dot select and here you have to pass, can you see this, you have to pass a lambda expression here. तो लैम्डा एक्सप्रेशन मतलब ऑल ईएमपी में आप समझो कि फॉर लूप चला रहे हैं हम लोग. तो अपने को क्या मिलेगा, एट अ टाइम वन एम्प्लॉय वी विल गेट, राइट. सो ई implies e dot salary e dot basic greater than 30,000. So see what we have written here. वो जो अपन ने 3 लाइन में स्टेटमेंट लिखा था वो और भी कट शॉर्ट होके ऐसा लिखा जाता है. दिस इज द कलेक्शन डॉट सेलेक्ट एंड वी आर यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन हियर. यहाँ पर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसा समझ लो कि ये फॉर ईच लूप चलेगा अगर, तो फॉर ईच लूप में क्या निकलेगा, एम्प्लॉय निकलेगा. सो ई इज वन एम्प्लॉय. आप इम्प्लॉइज तो कौन सा एम्प्लॉय, जिसका बेसिक सैलरी 30,000 से ज्यादा है उसको ही सिलेक्ट करो. सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस. तो ये रिटर्न क्या किया उसने, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया. तो मुझे समझो ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए. अ, एक मिनट.
इसका रिजल्ट हो गया है, एक्चुअली वो कंडीशन है ना, तो वो कंडीशन रिटर्न कर रहा है। इसका एक बार देखना पड़ेगा सिंटैक्स 1 मिनट। ये देखो, इनपुट implies expression, this is the format we have to apply। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स डॉट सिलेक्ट, हाँ ये तो सीधा स्क्वायर करेगा, ये समझ में आ रहा है क्या? दिस वन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ये पहले एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं। सिंपल से start। So list int numbers, so we have a list of numbers over here, okay, and where square is equal to numbers dot select and x implies x multiplied by x, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। मतलब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, हर एलिमेंट को क्या करो, स्क्वायर करके दे दो मुझे, और वो किस में आ जा रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। सो वी आर नाउ अप्लाइंग द फॉर लूप टू डिस्प्ले दिस आउटपुट, सो एवरी डेटा स्क्वायर विल बी डिस्प्लेड हियर। So this is the square of each and every number. Please tell me everyone, are you able to understand this point? अभी जो मैंने आपको समझाया था, ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन समझाया था, वो सिलेक्ट मेथड को ऐसा पैरामीटर देना पड़ेगा। तो जो कलेक्शन है उस पे वो सब पे वो अप्लाई करता है। सो दिस वर्क्स एज एन इनपुट, दिस इज द एक्सप्रेशन, वो रिजल्ट रिटर्न होता है। सो दैट रिटर्न रिजल्ट इज स्टोर्ड हियर इन स्क्वायर। So can you please type U for understood if you have understood this example? सिर्फ ये example समझ में आया है तो U for understood type करो। Now let's take another example। तो समझो मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट। ये सिंटैक्स ना थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मैं इसको, एम्प्लॉय क्लास है क्या अपने पास? हाँ, देयर इज एन एम्प्लॉय क्लास वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ना, तो इसी को यूज करते हैं हम लोग। So we have a list of employees here। ऑल EMPs डॉट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मतलब सॉर्टिंग कर दो, किसके बेस पे? नेम के बेस पे। तो dot emp name। So here we are saying just apply the sorting on the basis of employee name। So if you write here for each empe in new details, क्या हो रहा है? Now can you see the output here? Abhay, Akshay, Amit, Manoj, Pratiksha, Seema। So already it has been sorted in the alphabetical order। अगर आप यहाँ पर ई डॉट बेसिक लिख दोगे तो सैलरी सॉर्ट हो जाएगी किसके बेस पे? बेसिक के बेस पे। So this expression is the lambda expression।
ये देखो, जिसकी बेसिक सैलरी कम से बढ़ते हुए उसमें ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट एवरीवन? और एक लैम्डा एक्सप्रेशन मुझे बनाना था। ये किया तो नेम्स सेलेक्ट होके आ जाएंगे, वो पर्टिकुलर शायद प्रॉपर्टी पूरा वो सेलेक्ट नहीं होगा। और कुछ ऑप्शन है क्या? सिलेक्ट। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट का तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। सो इफ यू वांट टू गेट, अगर ऐसा लिखा तो क्या मिलेगा अपने को रिजल्ट में? व्हाट विल आई गेट एज अ रिजल्ट, टेल मी। सारे सैलरीज मिल जाएंगे, है ना? तो अभी इसको प्रिंट करके अगर आप देखोगे, सो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल सैलरीज। ये सारे सैलरी मिलेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दिस। यहाँ पर मतलब कुछ भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ईएमपी नेम है डॉट, इसमें भी सेलेक्ट आ सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। So if I write something like this, that I am saying select all the employee names. तो अभी तो अपन ने बेसिक का किया है। So I hope you all understood this concept. लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में आया? जो इनपुट दिया है उस पे आप क्या ऑपरेशन करने जा रहे हो वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है? और जो एक्सप्रेशन रहता है वही रिटर्न करता है वो। अंडरस्टूड? सो इट विल रिटर्न द कलेक्शन वट एवर यू आर राइटिंग ओवर हियर, उसका कलेक्शन वो रिटर्न कर देगा। ऑर्डर बाय में तो वो उसने सॉर्टिंग किया एक्स को किसके बेसिस पे, इसके बेस पे। लेकिन सेलेक्ट लिखोगे तो सेलेक्ट में वो पर्टिकुलर वैल्यू ही सेलेक्ट हो जाएगी। डन? समझ में आया सबको? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई विल स्टॉप हियर।